उसमें एक गाना था, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखा। तो उसमें क्या था, इनको स्विमिंग करना था। इन्होंने बोला कि मैं 2 पीस पहनूंगी। मैंने कहा कि 2 पीस पहनोगी तो फिर वहाँ पे बॉम्बे में सेंसर नहीं होगी पिक्चर। हाँ। नहीं, मैं तो नहीं। तो मैंने कहा कि कर लो भाई। तो बोला अच्छा मंगा दीजिए। तो मैंने इमीडिएटली मंगा दिया उसको और फिर उन्होंने किया। इस तरह से आराधना में भी यही हुआ कि मैं बाल सफ़ेद नहीं करूँगी। अरे क्यों नहीं करोगी भाई, बताइए मेरी उम्र इस वक्त क्या होगी जब मैं जेल से वापस आती हूँ। मैंने कहा होगी यही कोई 38 या 40 के बराबर होगी। मेरी मदर तो इससे बहुत बड़ी हैं, उनका तो एक भी बाल सफ़ेद नहीं। मैंने कहा तुम्हारी मदर कभी जेल नहीं गई है। कई रोल, मतलब ज़िंदगी में कई रोल इतनी आसानी से और इतनी खूबी से कर जाती हैं कि हम भूल जाते हैं कि अलावा एक बहुत कामयाब बीवी होने के और माँ होने के और होम मेकर होने के एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी हैं। तो मैं वो भूल गया था, मैं उस चैप्टर को फिर ज़रा जल्दी दोहरा दूँ। वो चैप्टर जहाँ आपकी बंगाली फ़िल्मों का चैप्टर था और पहली बार जब आपकी फ़िल्म रिलीज़ हुई और रे साहब तो वॉज लाइक अ प्रिसाइडिंग डीटी इन बंगाल, तो लोगों ने देखी और लोग आपको पहचानने लगे। सो व्हाट वाज द फीलिंग दैट व्हेन पीपल से अरे वो जा रही है वो अपूर्व संसार की? I mean, everybody fell in love with Apurna. Overnight, Apurna became the heartthrob of every young person. Apurna was the ideal wife, ideal love. So to that extent, there was a tremendous appreciation for. नहीं, लेकिन अपूर्णा उर्फ शर्मिला को कैसा लगता था? When she used to get recognized and more. I wasn't allowed to enjoy that very much because I worked and then I went back to my studies. Somebody who has some nice things to say about you. Sure. Hello, Sharmila. Oh. The first time I saw you, I was rather surprised because you appear to be too young for the role, at least for the moment. And you remember one thing, one day you came in a skirt or something to the studio and Satyajit Ray told you not to come to the studio ever again in that skirt. You should always come in a sari so that you look a little older. These are all matters of past. Well, we have an opportunity to work together in very near future in Gautam Ghosh's film. I hope that will be as enjoyable as it has always been working with you. Do you remember the time when you and I were very young? We were both young sort of stars on the rise or actresses on the rise. And there was, I think, a party held at the Grand, if I remember correctly, where it was a felicitation for Suchitra Sen because she won the Best Actress Award at Moscow for her performance in Shat Pake Bandha, I think. And you and I went and helped ourselves at the buffet. And I think it was from you that I first learned that you broke bread rather than cut it. and we watched as Suchitra Sen almost enacted that scene in Shat Pake Bandha where she sort of tears Shaumitra's kurta down the middle, and both of us were sort of amused, shocked, and very sort of impressed by this ability to do something like that in public. I still remember that incident. And I heard from Rituparna Ghosh that you're sometimes planning or toying with the idea of becoming a director, a film director. And it is my earnest wish that you actually do so. Look forward to a film from you. बंगाली फिल्में जो बहुत अच्छी बंगाली फिल्में जो इनके नाम दर्ज हैं, कई बहुत ही अच्छी हिंदी फिल्में भी शर्मिला जी के नाम दर्ज हैं और उस चैप्टर को हम खोलते हैं। पहले मैं दावत देता हूँ एक साहब से जो इनकी हिंदी फिल्मों के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। मैं उन्हीं को बुला के उनसे बातें करता हूँ। आइए तशरीफ लाइए। How nice for you to come. Very well. How nice to see you.
Thank you It's for a pleasure coming. for me. Thank you for coming. देखिए आप आदाब शकीला, शुक्रिया आपका शीला। सबसे पहले आपने शर्मिला जी को कास्ट किया था कश्मीर की कली में। जी हाँ। जी, तो आप कश्मीर से होते हुए मतलब कली ढूंढने बंगाल कैसे पहुंच गए थे? ऐसा था कि कश्मीर में मैंने कोई कली नहीं ढूंढी। जी, मैंने जब कहानी पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने सोचा कि इसमें किसको कास्ट करूं। शमी को मैंने बोला था यार मैं एक पिक्चर बनाऊंगा जिसमें तुम रहोगे। तो उसने पूछा क्या नाम क्या रखा है। मैंने कहा कि उसका नाम है कश्मीर की कली। तो इनकी एक तस्वीर निकली थी, वो प्रसाद करके एक मैगज़ीन निकलता था, उसमें एक फ़ोटो निकली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की शायद अच्छी लगेगी। उनकी कोई पिक्चर मैंने देखी नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर पूछा इनसे हिंदी बोल लेती हैं आप? बोले कि हिंदी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इनके डायलॉग्स लंबे नहीं रखूँगा, छोटे छोटे रखूँगा। अब जिस तरह से एक सीन था जिसमें शमी उनको एक अंगूठी पहनाता है कि आज के बाद तुम मेरी होगी। कोई आए तो उसको अंगूठी दिखा देना। बोले अंगूठी क्यों दिखाऊंगी, मैं अंगूठा नहीं दिखा दूंगी। इस तरह से मतलब जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इस तरह के सीन्स करते थे पहले ताकि इनके डायलॉग ज़्यादा ना हो। उसके बाद धीरे 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 इनकी आदत हो गई, अच्छी तरह से ये बोलने लगी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग। जी जी जी। जब शक्तिदा पहली बार आपके पास आए तो आपको क्या लगा कि भाई पता नहीं क्या बनाने वाले हैं और किसके साथ काम करने वाले हैं आप? कौन? शम्मी कपूर? No, no, it was not like. It was actually when you work in a regional film, going to the national scene is obviously what everybody looks forward to because you want to reach out to a larger viewership. And this, in that way, was a huge opportunity. शक्तिदा, जब आपने शर्मिला जी को लिया और आपने उनके साथ कश्मीर की कली में काम किया तो इट वाज अ रेगुलर, जैसे नई लड़की आती है एक फ्रॉथी टिपिकल हीरोइन टाइप इमेज में कि 4 गाने गाने हैं और हीरो जब पिट रहा है तो यूं करना है और हो करना है, दैट कैन यू नो वेयर लवली क्लोथ। बट देन आपने वो ग्रोथ इनमें कब महसूस की देखिए, एक जिसमें बात आपने बताऊं। इस किस्म की आगे की जो फिल्में बनाई? तो क्या है कि हमारे यहाँ जब भी कोई हीरो या हीरोइन काम करता है तो हम उसको एक फैमिली मेम्बर जैसा बना देते हैं। तो एनीवे वी आर वेरी हैप्पी। अभी मैंने उनको कहा कि तुम इवनिंग इन पेरिस में काम करोगी, तुम अकेली जाओगी। तो बोले ठीक है। तो वो इनकी जो हेयर ड्रेसर थी उनको साथ लिया और हम लोग 72 डेज वी आर आउटसाइड Yes. इंडिया। जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया खासतौर से इवनिंग पेरिस में, मतलब ये था कि भाई एक ज़बरदस्त किस्म की, जिसको हम पॉपुलर जबान में कहते थे ऊम्फ इमेज जो है वो शर्मिला जी की थी। फिर आपने आराधना बनाई जिसमें एक बिल्कुल ही अलग पहलू आपने पेश किया। तो आपको कब महसूस होने लगा कि दिस एक्ट्रेस इज नाउ टर्निंग इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ शुरू से ही 2-3 पिक्चरें करने के बाद से ही मैं समझ गया था कि इसके अंदर बहुत टैलेंट है और ये काम कर सकती है। मगर थोड़ी ज़िद्दी थी, थोड़ी ज़िद्दी थी, थोड़ा झगड़ा भी करती ज़्यादा थी। कोई खास अभी आपको झगड़े की बात बताऊं। जी। इवनिंग अच्छा, इन पेरिस झगड़े की बहुत सारी बातें बताती हैं। शर्मिला जी तो बताती नहीं। God, वो बता भी देंगे। सच अ डायरेक्ट पर्सन शक्ति जी। हाँ। उसे क्या है, उसमें एक गाना था आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखा। तो उसमें क्या था, इनको स्विमिंग करना था। इन्होंने बोला कि मैं 2 पीस पहनूंगी। मैंने कहा कि 2 पीस पहनोगी तो फिर वहाँ पे बॉम्बे में सेंसर नहीं होगी पिक्चर। हाँ, बोले नहीं मैं तो नहीं करूँ। तो मैंने कहा कि कर लो भाई, प्लीज़ कर लो। तो बोला अच्छा मंगा दीजिए। बड़े गुस्से से उन्होंने बोला मंगा दीजिए। तो मैंने इमीडिएटली मंगा दिया उसको और फिर उन्होंने किया। और देखने के बाद, पिक्चर देखने के बाद उनको बोला नहीं नहीं ठीक है, वो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। इस तरह से आराधना में भी यही हुआ कि मैं बाल सफ़ेद नहीं करूँगी। अरे क्यों नहीं करोगी भाई? देखो बाल क्या, अब बताइए मेरी उम्र इस वक्त क्या होगी जब मैं जेल से वापस आती हूँ। मैंने कहा होगी यही कोई 38 या 40 के बराबर होगी। मेरी मदर तो इससे बहुत बड़ी हैं, उनका तो एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी मदर कभी जेल नहीं गई है, उसका लड़का कभी खूनी नहीं रहा है। तो वो जो तकलीफ़ें तुमको मिली हैं और जिस लड़के को तुम प्यार करती थी वही फिर तुम्हारा लड़का होके आ रहा है, शक्ल तो एक ही है ना। तो इसलिए जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक कैसे होगा?
तो नहीं मैं तो नहीं कर But do you remember the first day when Aradhana was finally released? In the film, I am shown as an old woman. There's a scene with Madan Puri. Madan Puri ji comes to the cell and I'm sitting there with this grey hair. And moment the audience sees that, there is a general laughter. At that point, Shakti ji used to smoke like this, he was smoking like that. And he left. मतलब निकल गए थिएटर से और हम लोग बैठे रहे और फिर scene was on and at the end of that scene, which was about a minute long scene, everybody could hear, there was that, people had started crying. So somebody ran after Shakti ji, please come back, the picture is a hit, it's all right. People are crying. People are crying. Please. I hope they didn't find Shakti ji crying. कि अरे यार हंस रहे हैं। एक आपकी कलीग हैं जो उन दिनों की कलीग हैं, आपके बारे में कुछ कह रही हैं। Rinku Di, Adab. As you can see, I'm shooting. That's the reason I couldn't come personally. But I would like to grab this opportunity to thank you. Say a big thank you to you for all the lovely memories I have of Aradhana. We had a lovely time, didn't we? And I also remember the premiere night of Aradhana in Calcutta, when we got lost. It was well past midnight after the show, and we were roaming about, all through the city in your car, remember? And thank God, we found our way eventually, and we landed up at the hotel. My mother was so very worried, everybody in the unit, and we had fun. Anyway, one big thank you once again, and I know your show is going to be a great one. All the best. शकीला ने भी कहा कि बहुत उन्होंने कहा खैर थोड़ी ज़िद्दी थी, तो एक्ट्रेस जब अच्छी हो, टैलेंटेड हो और ज़िद्दी भी हो तो क्रिटिक्स से जो है उनकी कुछ बहुत ज़्यादा मोहब्बत के रिश्ते नहीं होते, लेकिन एक अच्छे से क्रिटिक हैं जिनसे इनका रिश्ता जो है अफेक्शन का तो नहीं, रिस्पेक्ट का तो ज़रूर होगा। मैं उनको बुलाता हूँ, प्लीज़ तशरीफ लाएं। I haven't seen you for so long. Very sweet of him to come because every time he calls me, I'm never able to turn up. And I'm so glad you could come. आप तशरीफ रखें। जब आप इनके काम के बारे में लिखते थे तो इनका क्या रिएक्शन आता था? I had reviewed a film called Avishkar and I slammed it actually. So after a few days, somebody called up and said, Sharmila would like to meet me, So I went to see her at Mehboob Studio. The first 15 minutes, she kept, criticizing me, attacking me. How did you understand the film? How could you slam it like that? I kept on arguing with her, and we had a long argument. At the end of it, of course, she was very nice to me, and then she said, "I should meet you again. You call me up." And I called up, and I met her sometime later. She said, "What made you think the film was not made properly? What was it lacking?" I explained to her. At the end of it, she did tell me that she liked the review. शर्मिला जी, आप चूँकि एक लंबा इनिंग्स रहा है, बहुत कामयाब, तो आप जनरली क्रिटिसिज्म को या क्रिटिक्स को कैसे रिएक्ट करती थी? It's better to ignore it, better not to go too deep. It is one person's point of view. If I can learn something from it, most certainly I will. But let's not delve too much into it. Let's not get too depressed. और फिल्म में काम करने वाले लोगों की ख़ास तौर से कलाकारों की ज़िंदगी के मुतल्लिक और प्रेस के मुतल्लिक जो बहुत अहम बातें की, मैं समझता हूँ हम सबको इस पे खूब गौर करना चाहिए, ख़ास तौर से वो लोग जो फिल्म सितारों को जो है बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे आसमान में बसने वाले लोग हों, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनसे कभी नहीं भी करते। शर्मिला जी की फिल्म करियर का एक बहुत वेरिड और बहुत वसी, बहुत फैला हुआ दायरा रहा है और कई तरह की फिल्में इनके नाम से जुड़ी हुई हैं। कुछ जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से थीं और कुछ जो हिंदी में थीं लेकिन मेन स्ट्रीम से नहीं थीं और फिर बहुत अच्छी थी, कामयाब भी थी और इनका काम भी जैसा कि कई फिल्मों में होता था बड़ा सराहा गया। ऐसे एक साहब से मुलाकात करते हैं, आइए तशरीफ लाइए। Good to see you. Yes, good to see you too. प्लीज आप साहब शुक्रिया।
रमेश शर्मा साहब टेलीविज़न पे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम के लिए जाने जाते ही हैं। एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई थी न्यू दिल्ली टाइम्स, बहुत लोगों ने देखी और बहुत पसंद भी की गई। रमेश साहब, जब आपने उस रोल के लिए एक तो शशि कपूर साहब को लिया था और फिर शर्मिला जी को भी लिया था, तो ये एक अनयूजुअल किस्म की कास्टिंग नहीं थी उस वक्त? Well, it was an unusual film. It was a film that was supposedly, from parallel cinema, but I wanted to make it into a mainstream. I wanted to reach out to the largest audiences. And it was my very first film. I was writing the script, and when I was writing the script, fortunately for me, I had already been in touch with people who've appreciated Sharmila ji as a great actress. People like Gulzar, who wrote my script, people like Subroto Mitra, legendary cameraman, who worked with Satyajit Ray and who was also my cameraman. So we had decided right from the beginning, even as my script was being made, that there were two persons only who would be the lead role. The cast, Shashi Kapoor in the lead and Sharmila ji in the, as a female lead. आपको इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, तजुर्बा कैसा रहा? Well, I must say that she's such a professional. I mean, that's the first time I began to realize what a professional acting is all about. I mean, there she was talking to us behind the stage. We would talk about a little bit on the scene. And then the moment she'd go on to the set, the scene would be delivered almost what a director wants. Also, from his side, the script was ready. We knew exactly what we were doing. आपका एक लोगों ने देखा लेकिन कम देखा, बिकॉज आपने वहाँ ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं किया। टेलीविज़न के साथ एक ताल्लुक था और एक साहब आपके साथ ही टेलीविज़न के आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। Hi Rinku, I can never forget the first time you did an interview. You were sitting there, I won't say who the guest was, but I think it was Shatrughan Sinha, and you had this earpiece in your ear, and you were a little nervous and a little shy. No one knew it, but I could tell because you kept saying to me, say something to me, Karan, say something to me, Karan. And eventually I remember saying, Rinku, if I said you had a beautiful body, would you hold it against me? And you giggled and you said, stupid boy. And Shatru sitting beside you thought you meant him. Do you remember? ये आपकी फ़ैन फॉलोइंग जहाँ क्रिकेट की दुनिया से लेके एक और किस्म का बहुत ही क्या कहना चाहिए, विचित्र खेल खेलने वाले लोगों में भी है। उस खेल के एक बहुत माहिर खिलाड़ी आपकी तारीफ में कुछ कह रहे हैं। बचपन से जवानी तक का सफ़र हमने आपकी फ़िल्मों को देख देख के तय किया है, चाहे वो आराधना हो और आराधना का रूप तेरा मस्ताना वाला गीत, और चाहे वो इवनिंग इन पेरिस की उम्फ गर्ल शर्मिला टैगोर हो, और चाहे वो सत्यकाम की पीड़ित नारी। जीवन के सभी विधाओं को, सभी रूपों को आपने अभिनय के रंग से रंगा है। और चाहे वो अमर प्रेम की संतप्त प्रेमिका जो रहना बीती जाए और शाम न आए करते हुए विरह में पागल और आकुल और व्याकुल है। मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा का बहुत नुकसान है कि आप ऐसी अदाकारा, आप ऐसी कलाकार बहुत दिनों से पर्दे से गायब हैं। अमर सिंह जी ने ये बात तो बिल्कुल सही की कि पर्दे का बहुत बड़ा नुकसान है। हम ये खुशखबरी इस मैसेज के ज़रिए दे दें कि बहुत ज़्यादा दिन तक ये नुकसान जो है हमको झेलना नहीं पड़ेगा। एक और साहब जिनकी फ़िल्म शर्मिला जी अभी मेरा ख्याल है मुकम्मल करके आई हैं, उनकी बात सुनते हैं। Rinku di, কেমন আছো? Guess what I'm going to talk about? Okay, your storytelling. Now I know what. She selected a whole range of Katha stories and wanted me to collaborate on the screenplay. So we meet in Delhi and I tell her, okay, you tell me the stories which you like. Then she starts telling me stories. And one must hear Rinkudi telling stories because you just can't figure out anything. And she'll just start like, then he came and then she'll start with a pronoun and verb, and in Bengali language, the verb or the pronoun is not gender indicative. So you can't even make out whether it's a he or a she and who has come. It's the whole story is based on pronouns. তারপরে ও এলো, তারপরে বাবা মার কাছে গেল, তারপরে তো ও বিদেশ থেকে আসবে, and this kind of a funny thing, and then you come on, you tell me the story, give me the context. Wait till I what see him, are I'll you kill talking him. about? Who is this guy who has come and who is this guy? What has happened to him? Wait till I see you, I'll fix you. एक और दोस्त हैं शर्मिला जी की,
जो इनकी बड़ी एडमायरर भी हैं, शर्मिला जी भी उनको बहुत पसंद करती हैं, एक उनके एक किसी अलग रूप के बारे में बात करना चाहती हैं। प्लीज़ तशरीफ लाएं। So nice. Thank you so much for coming. Thank you so much for asking me. It's wonderful. कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। आप कैसी हैं? I'm fine, thank you. तो ना बिटवीन टू चार्मिंग लेडीज who's going to, मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता कि No, I have a lot to say about her, so I जी better प्लीज sit. जी प्लीज जी फरमाइए। आपकी और शर्मिला जी की मुलाकात कब की है, कैसी है? ये कलकत्ते की टाइम की बात है, कोई 30 साल हो गए होंगे। एक दूसरे को मिलते रहते थे, and I always used to admire the way she dressed so elegantly. But other than that, I recently met her more closely 2 years back, and I saw another side of Rinku. I had gone to the Putodi house. I was researching a book called Costumes and Textiles of Royal India. And मैंने पूरी फैमिली की पहले तो कपड़े हमने रिसर्च किए, निकाले. We spent some nice afternoons together. And then I saw another aspect of her, how she'd adapted herself to a totally different clothing culture, how she understood both of them. And the most beautiful inside of her as a person who, hung on between these two stools very, very well, both in fashion as well as in the cultural sense. ये आपकी बात से जुड़ी हुई और इस वाक़े से जुड़ी हुई कि तस्वीरें देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये जब ये जाहिर है कि जिस किस्म की कॉस्ट्यूम्स हैं, एक तो उसकी तैयारी में ही खून का पसीना हो गया होगा, और फिर उसको पहनना, उसके लिए तैयार होना, फिर उसके लिए पिक्चर करना। शर्मिला जी को तो आपने जैसे कैसे राज़ी किया होगा अभी आप बताएंगी, लेकिन मैं मंसूर साहब को भी आदाब कर दूंगा, साहब आप भी इस मशक्क़त में जो है शामिल हुए और वो भी राज़ी नहीं हुए। तो तीनों बच्चे और जी बच्चे तो खैर इन चीज़ों के बारे में पर्टिकुलरली लेडीज आर क्वाइट एंथुसियास्टिक। 31 दिसंबर की सुबह 6 बजे हम पटौदी पहुंचे, तो वो समय किसी को अच्छा नहीं लगता है उठना, पर अदर देन दैट ये इनका जो लियाकत है, जो इनका कल्चर है, दे फेल वेरी इजीली इनटू द क्लोथ्स। एंड हाउ वाज इट वर्किंग विद शर्मिला जी इन दिस रिगार्ड? Lovely. We caught up with you. Now I've grown up, huh? Not like Shakti ji says, one doesn't remember, now I'm a grandmother and all that, huh? So I'm very well behaved these days. Not well, it was that she just fell into the role so beautifully. And as for him, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। I mean, थोड़ी सी। I thought you were a friend of mine. मैं इनको कहूँ आप पगड़ी पहनिए, वो कहेंगे ये क्या, ये क्यों मुझे इस वक्त क्यों ऐसे आप तंग कर रहे हैं?